জাহ্নবী অসমত এতিয়াই নহয় এছআইআৰ অসমত বৰ্তমান এছআইআৰ নহয় এনআৰসিৰ কাম শেষ হোৱাৰ পাছতহে অসমত এছআইআৰ প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে পৃথককৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ব বা হুকিয়াকৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ব বৰ্তমান যেহেতু এনআৰসি কাম চলি আছে গতিকে এনআৰসিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমত এতিয়াই এছআইআৰ নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগে লৈছে এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ অসমত এতিয়াই নহয় এছআইআৰক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তগৰাকীয়ে সন্দৰ্ভত ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে এবাৰ যদি নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ হৈছে তেন্তে দ্বিতীয়বাৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন নাই অসমৰ বাবে হুকিয়াকৈ কৰা হ'ব নাগৰিকত্ব প্ৰমাণৰ ব্যৱস্থা হুকিয়াকৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ব এছআইআৰৰ বাবে অসমত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে এই সন্দৰ্ভত ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আজিৰে পৰা 12খন ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হৈছে এছআইআৰ ইতিমধ্যে 12খন ৰাজ্যত এছআইআৰ প্ৰযোজ্য হ'ব আজিৰে পৰা এনআৰসি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে অসমত হ'ব এছআইআৰ এনআৰসিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে অসমত এছআইআৰ হ'ব আৰু বৰ্তমান যেহেতু এনআৰসি চলি আছে গতিকে এনআৰসিৰ কাম পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমত এছআইআৰ এতিয়াই নহয় অসমত এনআৰসিৰ পাছতহে এনআৰসি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে এনআৰসি শেষ হোৱাৰ পাছতহে অসমত এছআইআৰ হ'ব আৰু এছআইআৰৰ বাবে অসমত পৃথককৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ব বা সুকীয়াকৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ব কিন্তু বৰ্তমান যিসকলে ভাবি আছে যে অসমতো এছআইআৰ প্ৰযোজ্য হ'ব অসমত কিন্তু এতিয়াই এছআইআৰ নহয় বুলি দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে এই সন্দৰ্ভত ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে এছআইআৰক লৈ যেহেতু দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছিল যে ক'ত ক'ত এছআইআৰ হ'ব যেহেতু দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কৈছিল যে এছআইআৰ প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব যেহেতু আগন্তুক যিকেইখন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে বা আগন্তুক যিকেইখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচনক লৈ উত্থাপ লাগি আছে আগন্তুক সেই নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া সেই ৰাজ্যকেইখনত এছআইআৰ প্ৰযোজ্য হ'বনে নহয় তাক লৈ যেহেতু চৰ্চা অব্যাহত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি চলি থকা ৰাজ্যকেইখনৰ ভিতৰত যেহেতু অসমো আছিল গতিকে অসমতো এছআইআৰ হ'বনে নহ'ব তাক লৈ সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন আছে সকলোৱে ভাবি আছিল যে অসমতো নিশ্চয়কৈ এছআইআৰ হ'ব যেহেতু নিৰ্বাচন আয়োগে কৈছিল যে দেশৰ ৰাজ্যসমূহত এছআইআৰ প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব বা ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব বুলি যেটো উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে যে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে সেই সংবাদমেল জৰিয়তে এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে আজিৰ পৰা 12খন ৰাজ্যত এছআইআৰৰ কাম প্ৰযোজ্য হৈছে গতিকে 12খন ৰাজ্যত যেহেতু এছআইআৰ প্ৰযোজ্য হৈছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত বৰ্তমান অসম নাই অৰ্থাৎ অসমত এতিয়াই নহয় এনআৰসিৰ কাম শেষ হোৱাৰ পাছতহে হ'ব এছআইআৰ অসমত বৰ্তমান এছআইআৰ নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে সকলোৰে মনত যে প্ৰশ্ন আছিল যে চৰ্চা আছিল এছআইআৰক লৈ এছআইআৰ হ'বনে নহয় এছআইআৰ প্ৰযোজ্য হ'বনে নহয় বা ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণ হ'বনে নহয় তাক লৈ যেটো চৰ্চা আছিল গতিকে এবাৰ নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ হ'লে আৰু এতিয়া নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন নাই বৰ্তমান অসমত এছআইআৰ নহয় যেটো এনআৰসি চলি আছে গতিকে এনআৰসি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে বা এনআৰসি শেষ হোৱাৰ পাছতহে অসমত হ'ব এছআইআৰ গতিকে এছআইআৰৰ বাবে অসমত পৃথককৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ব সুকীয়াকৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ব কিন্তু বৰ্তমান অসমত এছআইআৰ নহয় বুলি এই কথা উল্লেখ কৰিছে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে এই সন্দৰ্ভত ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে গতিকে অসমত এনআৰসি হোৱা নোহোৱাক লৈ যিসকলৰ মনত প্ৰশ্ন আছিল চৰ্চা আছিল সেইসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো বৰ্তমান অসমত এছআইআৰ নহয় বা বৰ্তমান অসমত এছআইআৰ প্ৰযোজ্য নহয় এনআৰসি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে অসমত এছআইআৰ প্ৰযোজ্য হ'ব ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তগৰাকীয়ে সন্দৰ্ভত ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে গতিকে এনআৰসিক লৈ যিসকলৰ মনত চৰ্চা আছিল বা এনআৰসিক লৈ যিসকলৰ মনত প্ৰশ্ন আছিল তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চয়কৈ এক ডাঙৰ খবৰ যে বৰ্তমান অসমত এছআইআৰ নহয় এনআৰসি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হ'ব এছআইআৰ আৰু ইয়াৰ বাবে দিয়া হ'ব পৃথককৈ নিৰ্দেশনা এই সন্দৰ্ভত দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ आसाम का एक विषय पूछा गया जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था वो आसाम पर लागू नहीं होता
और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था,
वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने